عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں دو سپر پاور تھی، ایک رومن امپائر اور دوسرا پرزین امپائر۔ رومن امپائر کو شکست دیا جا چکا تھا اور ان کی طاقت کو کچلا جا چکا تھا، لیکن جو دوسری امپائر تھی پرزین امپائر، ان کی تعداد حد سے زیادہ تھی۔ لگ بھگ ان کے پاس 2 لاکھ کے قریب فوج تھی اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ بہت ہی زیادہ کم تھی۔ لیکن پھر بھی ان دونوں کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ لیکن وہ فتح کیسے ہوئی، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سن 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کو لیا اور مکہ کی طرف نکلے تاکہ عمرہ کیا جائے۔ آگے گئے تو ایک جگہ پہ رکے، وہاں سے ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جا کے مکہ والوں سے کہہ دو کہ ہمارا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے کہا، اور ان لوگوں نے ایک صلح اور ایک ایگریمنٹ کیا اور کہا کہ آپ لوگ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ لوگ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیے۔ اور دوسری جو سب سے زیادہ کروشیل پوائنٹ تھی وہ یہ تھا کہ 10 سال تک ہم لوگوں کے بیچ میں جنگ نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو یوز کیا اور مکہ سے باہر اسلام کی دعوت کو پھیلانا شروع کیا۔ لہذا آپ نے ایک لیٹر ہرقل کی طرف بھیجا جو اس وقت رومن کا بادشاہ تھا، دوسرا لیٹر ایجپٹ کی طرف بھیجا اور تیسرا لیٹر حبشہ کی طرف بھیجا۔ ان تینوں لوگوں نے لیٹر کا بہت اچھے سے سواگت کیا، استقبال کیا، لیکن ایک لیٹر پرزین امپائر کی طرف بھی بھیجا گیا۔ اس وقت وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ خسرو پرویز تھا، جو بہت ہی زیادہ گھمنڈی تھا۔ جب اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا اور اس نے آپ کا پیغام سنایا اور لیٹر کو پڑھنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ اس میں تم کس کا نام لے رہے ہو؟ یہ تو ہمارے غلاموں کا نام ہے۔ اور اس نے حکم دیا کہ جاؤ اور محمد کو قید کر کے لاؤ، اور اس کام کے لیے اس نے 2 لوگوں کو بھیجا۔ جب وہ دونوں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کو قید کرنا چاہتے ہیں، اور بہت ہی بدتمیزی سے انہوں نے بات کی، تو آپ نے کہا کہ تم مجھے کیوں قید کرنا چاہتے ہو، اور تم کو قید کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم جس بادشاہ کے کہنے پہ آئے ہو اس کو تو کل قتل کیا جا چکا ہے اور اس کا بیٹا ہے اس کو قتل کر دیا ہے۔ جب ان لوگوں نے بات سنی تو ان کو یقین نہیں ہوا، کیونکہ خسرو پرویز 40 سال سے حکومت کر رہا تھا، بہت ہی زیادہ طاقتور بادشاہ تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جائیں گے اور اپنے بادشاہ کو بتائیں گے آپ ہمارے بادشاہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور وہ سننے کے بعد آپ کو ضرور قتل کریں گے اور قید کر لیں گے۔ لیکن جب وہ لوگ واپس گئے اور وہاں دیکھا تو حقیقت میں اس کو قتل کیا جا چکا تھا، اور خسرو پرویز کا بیٹا ہی اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ باپ کو قتل کرنے کے بعد وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ لیکن معاملہ ہمیشہ غلط رہا، خلط ملط رہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی بادشاہ بنتے گئے، قتل ہوتا گیا۔ جب وہاں کے جرنیلوں نے سب چیزیں دیکھی تو پریشان ہو گئے اور میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ان لوگوں نے کہا کہ ہماری اس کمزوری کا فائدہ مسلمان اٹھائیں گے اور وہ لوگ متحد رہیں گے۔ لہذا جو رستم وہاں کا جنرل تھا اس نے کہا کہ ہم ایک آدمی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور اس نے ایک نام تجویز کی جس کا نام یزدگرد تھا۔ بچہ تھا جس کی عمر صرف 10 یا 11 سال تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کو بادشاہ بنا دیا جائے، لیکن کنٹرول اس کے انڈر میں ہو اور سارا کام وہ کرے۔ اس نے یزدگرد کو بادشاہ بنا دیا اور سارا کنٹرول اسی کے انڈر میں رہا۔ ادھر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت آ چکی تھی۔ خلافت آنے کے بعد رومن امپائر کو جب کچلا جا چکا تھا تو آپ نے مسلمانوں کا ایک دستہ یزدگرد کی طرف بھیجا تاکہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ قاصد یزدگرد کے پاس گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ یا تو اسلام کو قبول کر لو یا پھر جزیہ دو، نہیں تو پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ یزدگرد نے ان کی بہت ہی زیادہ بے عزتی کی، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ جو تم لوگوں میں سے سب سے اچھے خاندان کا ہو اس کے سر پہ ایک ٹوکری مٹی کا رکھ دیا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ اس بات کو اس نے اپنے مجمع میں بیان کیا اور بہت ہی زیادہ ہنس رہا تھا۔ وہیں پہ ایک نجومی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے بہت ہی غلط کیا، آپ نے جو یہاں سے مٹی بھیجا، آپ نے مٹی نہیں بھیجا ہے بلکہ پورے ایران کو بھیج دیا۔ جب یزدگرد نے بات سنی تو اس نے کچھ لوگوں کو اس کے پیچھے لگایا کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے، لیکن یہ لوگ دور جا چکے تھے۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی
तो इन्होंने कहा कि लोगों में ऐलान आम कर दो कि हम पर्शियन एम्पायर से लड़ना चाहते हैं, ताकि लोग आए और फौज में शामिल हो। और एक कह करके वह हज करने के लिए चले गए। जब हज करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि बहुत ही ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके हैं और जंग के जज्बे से सरशार है। ये सब इकट्ठा हो करके पूरे 30,000 लोग हुए। 30,000 लोगों को लेकर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु निकल गए। जब कुछ दूर गए थे तो अली बिन अबी तालिब मिले और कहा कि आप क्यों लेके जा रहे हैं? आपके लिए जरूरी है कि आप मदीना में रहें और किसी और इंसान को हम सिपहसालार बना देते हैं। यार नाम की सिफारिश होने लगी। उसके बाद एक सहाबी ने कहा कि साद बिन अबी वक्कास को सिपहसालार बनाया जाएगा। उमर फारूक भी इस बात से मुत्तफिक हो गए और साद बिन अबी वक्कास को सिपहसालार बना दिया गया। उमर फारूक ने उनको स्ट्रिक्टली मना किया कि तुम जाके सबसे पहले इस्लाम का पैगाम उसको देना और कभी भी जंग की शुरुआत मत करना। वो गए और उन्होंने एक पहाड़ी तजवीज की जिसके सामने पर्शियन एम्पायर थी और उनके पीठ के पीछे मदीना था। वहां रुक गए और वहां फिर एक कासिद को भेजा कि जाओ उनको इस्लाम की दावत दो। उधर यज़गर्द ने जब लोगों को भेजा था और कासिद नहीं मिले थे तो उसने रुस्तम को हुक्म दिया और कहा कि पूरे मुसलमानों को कुचल डालो। लिहाजा रुस्तम 1,75,000 फौज को लेकर निकल गया और कादसिया के मैदान में आया। इधर मुसलमान भी कादसिया के मैदान में थे, लेकिन वहां पे एक नदी थी और मुसलमानों ने उस नदी को पार नहीं किया क्योंकि इनको पिछले जंगों से एक्सपीरियंस हो चुका था कि नदी को खुद से पार नहीं करना है। लिहाजा नदी के इस पार मुसलमानों की फौज थी और नदी के उस पार रुस्तम की फौज थी। रुस्तम रुका रहा, जंग को टालता रहा, यहां तक कि पूरा 1 महीना गुजर गया। इस बीच साद बिन अबी वक्कास लोगों को भेजते रहे, कासिद को भेजते रहे कि रुस्तम को इस्लाम की दावत दी जाए, इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में आपने मुगीरा बिन शुअबा को भेजा। मुगीरा बिन शुअबा रुस्तम के दरबार में गए। रुस्तम के दरबार में जब गए तो आपके पास एक तलवार थी जो तलवार पुरानी थी। जब रुस्तम ने उस तलवार को देखा तो हंसने लगा और कहा कि तुम इस तलवार से पर्शियन एम्पायर से लड़ना चाहते हो जिसके पास 1,75,000 फौज है और तुम्हारे पास सिर्फ 30,000 फौज है। मुगीरा बिन शुअबा ने जवाब दिया कि हमारी तलवारें भले ही पुरानी हो लेकिन बहुत ही ज्यादा तेज है। उसके बाद मुगीरा बिन शुअबा वापस आ गए। रुस्तम ने जंग का हुक्म दे दिया। उसने साद बिन अबी वक्कास से कहा कि मेरी फौज उधर जाएगी या तुम्हारी फौज इधर आएगी। साद बिन अबी वक्कास ने कहा कि मेरी फौज जहां पे वहीं रहेगी, तुम इधर आओ। रुस्तम जो गुरूर और घमंड में था और उसको फौजियों की तादाद का घमंड था, वह दरिया को पार कर गया। दरिया पार आने के बाद सबसे पहले छोटी छोटी लड़ाई हुई। इधर से एक आदमी निकले, उधर से कुछ निकले, और जब भी मुसलमान के कुछ लोग निकलते थे तो रुस्तम के फौज को हरा देते थे, कत्ल कर देते थे या उसको गिरफ्तार करते थे। जब इन चीजों को रुस्तम ने देखा तो उसने जंग का ऐलान कर दिया। जंग शुरू हो गई। इस जंग में एक और चीज हुई थी, वो ये थी कि 33 एलिफेंट्स, इंडियन एलिफेंट्स रुस्तम के पास थी जो इंडिया में ट्रेंड हुई थी। उस एलिफेंट को उसने यूज किया। एलिफेंट ने लोगों को कुचलना शुरू किया और जब मुसलमानों की जो फौज थी और इनके जो घोड़े थे, जब इन्होंने हाथियों को देखा तो पीछे हटने लगे, परेशान होने लगे, लोगों को चला जाने लगा। यह देखकर साद बिन अबी वक्कास ने अपनी फौज को हुक्म दिया। उस वक्त साद बिन अबी वक्कास बीमार थे, वो जंग नहीं कर रहे थे बल्कि वहीं पे एक बिल्डिंग थी उसी में थे। उन्होंने हुक्म दिया कि तमाम फौज पीछे हट जाए, सिर्फ कबीला बनु तमीम के लोग लड़ाई करेंगे, क्योंकि कबीला बनु तमीम के लोग माहिर थे और इस तरीके से उनको महारत हासिल थी। उन लोगों ने लड़ाई करनी शुरू की, बहुत ही हाथियों को जख्मी किया, लेकिन इस जंग में मुसलमान भी बहुत ज्यादा जख्मी हुए। ये लड़ाई होती रही, यहाँ तक कि पूरा दिन गुजर गया और इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। मुसलमान 500 शहीद हो चुके थे। रात में जो लोग जख्मी थे उनका इलाज किया गया। जब दूसरे दिन की सुबह हुई तो साद बिन अबी वक्कास ने जितने लोग शहीद हुए थे उनको दफन किया और उसके बाद दूसरे दिन के जंग की तैयारी शुरू होने लगी। जब अभी जंग शुरू ही नहीं हुई थी तो इन लोगों ने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं,
एक मुसलमानों की फौज थी जो शाम में थी। वहां से 6000 लोगों को भेजा गया जिनको टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। सबसे पहले एक टुकड़ा आया, इसमें 1000 के करीब फौज थे और जिसको लीड काका बिन आम्र कर रहे थे, और 5000 की फौज अलग थी जिसको कोई दूसरा सहाबी लीड कर रहे थे। काका बिन आम्र जब आए तो उन्होंने मुसलमानों की फौज को ज्वाइन किया और बाहर निकले और रुस्तम से कहा कि तुम अपने किसी जर्नेल को भेजो, मैं उससे जंग करना चाहता हूं। रुस्तम ने एक जर्नेल को भेजा, काका बिन आम्र ने उसको वहीं पे मार दिया। इस तरीके से कई लोगों को मारा। काका बिन आम्र भी बनु तमीम से ताल्लुक रखते थे और बहुत ही ज्यादा बहादुर थे। दूसरे दिन जो जंग शुरू हुई, लोगों ने बताया काका बिन आम्र से कि इनकी हाथियों ने हमको बहुत ही ज्यादा परेशान किया हुआ है। तो आपने कहा कि हम लोग एक काम करते हैं, ऊंट जो हमारे पास ऊंटे हैं उसके ऊपर कपड़ा बिछा देते हैं और लकड़ी बिछा के ढक देते हैं, ताकि इनके जब घोड़े देखें तो इनको लगे कि ये भी हाथी है और ये लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन कोई भी हाथी नहीं आए, जंग होती रही। एक वक्त ऐसा भी आया कि मुसलमान गालिब आ गए थे और रुस्तम की फौज पीछे हटने लगी थी। रुस्तम ने जब ये चीज देखी तो खुद आया और जंग लड़ने लगा। जब वो जंग लड़ने लगा तो उसकी फौज देख के हिम्मत आई उनके अंदर और वो लोग भी लड़ने लगे और पूरा दिन गुजर गया, यहां तक कि शाम होने के बाद ये फौज वापस आ गई। तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन फिर जंग शुरू होती है और काका बिन आम्र थे, वो जंग को लीड कर रहे थे। साद बिन अबी वक्कास चूंकि बीमार थे, काका बिन आम्र ने लोगों से कहा कि आज अगर हाथी आएंगी तो तुम लोग निशाना बना के उनकी आंखों पे वार करना। उनकी आंखों पे जब वार करेंगे तो हाथी अंधी हो जाएंगी और इसकी वजह से हो सकता है। काका बिन आम्र ने मुसलमानों से कहा आज अगर हाथी आएंगी तो तुम उनकी आंखों पे वार करना। लिहाजा इन लोगों ने यही किया। 33 हाथियां आई, इन लोगों ने आंखों पे वार करना शुरू किया। देखा कि उनमें एक हाथी है जो सबकी सरदार दिखाई दे रही है और वो सफेद कलर की है। उसी को टारगेट किया गया और उसकी आंख पे तीर मारी गई। जब तीर मारी गई तो वो हाथी बिदक गई और वापस मुड़ गई और भागने लगी। जैसे वो हाथी भागने लगी तो जो दूसरी बाकी की जो हाथियां थी जो उसको फॉलो कर रही थी वो भी भागने लगी। और नतीजा इस जंग का ये हुआ कि लोग जो मुसलमानों को परेशान करने आए थे और मुसलमानों को जो कुचलने आए थे, रुस्तम की फौज को ही उल्टा कुचलने लगे, हाथियां उनको कुचलने लगी। जब रुस्तम की फौज ने चीजें देखी तो लोग परेशान हो गए। दूसरा ये हुआ कि जो इनके जो घोड़े थे, जो इनके ऊंट थे, जो मसनूई ऊंट थे, इन लोगों को देख के, इन ऊंटों को देख के उनके जो घोड़े थे वो परेशान हो गए और उन घोड़ों ने जंग से पीछे हटना शुरू किया और उन घोड़ों ने उन लोगों को ही मारना और कुचलना शुरू किया। तीसरे दिन एक अजीब वाकया पेश आया। एक औरत थी, उसके 4 बेटे थे। उसने अपने चारों बेटों को जमा किया और चारों बेटों से कहा मेरे बच्चों, तुम लोग एक बहादुर इंसान के बेटे हो, एक बहादुर माँ की बेटे हो। जंग में कभी भी पीठ फेर के पीछे नहीं भागना। अगर शहीद हो जाओगे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर भाग के आओगे तो मुझे दुख होगा और गम होगा। ये कह के वो चली गई और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। ये जंग होती रही। इस जंग में भी ऐसा मौका पेश आया कि जब रुस्तम की फौज हारने वाली थी। पहले तो मुसलमानों की फौज हारने वाली थी, लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद हुई और मामला पलट गया। जब रुस्तम की फौज हारने वाली थी तो रुस्तम फिर आके लड़ना शुरू किया और उसकी फौज के अंदर फिर हिम्मत आई और लड़ाई होती रही। जब शाम हो गई और लड़ाई जब बंद हुई तो सब लोग अपने अपने खेमे में आ गए। वो औरत अपने बच्चों को तलाश कर रही थी। जब उसने अपने बच्चों को नहीं देखा तो कत्लेगाह की तरफ गई, हो सकता कि यहाँ उसके बेटे हों। उसने देखा कि उसके चारों बेटों एक एक साथ करके वहां पे पड़े हुए हैं और शहीद हुए हैं। वो माँ बहुत ही ज्यादा खुश हुई और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह आज मैं एक बेटे या 2 बेटे, 2 शहीद बेटों की माँ नहीं बनी बल्कि 4 शहीद बेटों की माँ बन चुकी हूँ। जब चौथा दिन आया तो काका बिन आम्र ने लोगों से बताया, मुसलमानों से कहा और एक तजवीज की कि आज हम लोग सुबह होने से पहले ही रुस्तम के पास जाएंगे। रुस्तम जहाँ पे ठहरा हुआ है जाएंगे और उससे जंग करेंगे और उसको मार डालेंगे। जब हम उसको मार देंगे और उसकी फौज देखेगी कि उसका जनरल मारा जा चुका है तो उसकी फौज भी वापस चली जाएगी। ऐसा ही हुआ। जो काका बिन आम्र थे, इन्होंने कुछ लोगों को लिया और रुस्तम के पास गए
जब रुस्तम ने देखा कि ये लोग हमारे पास आ चुके हैं तो जंग करना शुरू किया। जंग हुई, बहुत देर तक जंग हुई, लेकिन रुस्तम के सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि रुस्तम फरार हो गया, वहां से भागने लगा। हिलाल जो एक सहाबी थे, उन्होंने देखा कि रुस्तम भाग रहा है तो उन्होंने पीछा किया और उन्होंने अपने बर्छे से वार किया। यहाँ तक कि रुस्तम का कमर टूट गया और कमर टूटने के बाद वो एक दरिया में गिर गया। दरिया में गिरने के बाद हिलाल ने उसको पकड़ा और लेके आए और सवारी पे सवार हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने रुस्तम को मार दिया है। जब उसकी फौज ने देखी तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ कैसे। अभी तो अब सुबह हो रही है और रुस्तम मारा जा चुका है। ये चीज देख करके उसकी फौज घबरा गई और वो लोग भाग खड़े हुए। यहाँ तक कि 30,000 के करीब सवार थे और तकरीबन सिर्फ 30 लोग बचे थे। इस जंग में 8,000 मुसलमान शहीद हुए थे और 30,000 के करीब रुस्तम की फौज शहीद हुई थी। रुस्तम की फौज मारी गई थी। इधर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ख्याल था कि हमेशा वो बाहर निकला करते थे और देखा करते कि कादसिया से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक सुबह जब वो बाहर आए, मदीना से बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि कादसिया से एक इंसान आ रहा है। आपने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई कादसिया की खबर है? उसने कहा कि मुसलमानों को फतह हासिल हुई है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने और दूसरी चीजें पूछी। वो इंसान पहचान नहीं पा रहा था कि अमीरुल मोमिनीन यही है। उसको हुक्म दिया गया था कि यह खबर अमीरुल मोमिनीन तक पहुंचाना, उमर फारूक तक पहुंचाना। वो ऊंट पे सवार था, उमर फारूक पीछे पीछे दौड़ रहे थे। जब दोनों मदीना में दाखिल हुए तो लोगों ने सलाम करना शुरू किया और कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। जब उस सवार ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन तो यही है, उमर फारूक तो यही है, वो डर गया और ऊंट से नीचे उतरा। आपने कहा कि तुम डरो नहीं, तुमने अपना काम अंजाम दिया, जो तुमको कहा जा रहा था वो अंजाम दिया। और आपने खुतबा दिया कि मुसलमानों, मैं तुम्हारा कोई बादशाह नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कोई राजा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक खलीफा हूँ और एक जिम्मेदारी है जो मुझे दी गई है। मैं भी अल्लाह का गुलाम हूँ, तुम भी अल्लाह के गुलाम हो। अगर तुम्हें कभी महसूस हो कि इंसान बदल चुका है तो तुम उसी वक्त मुझे हटा देना। और इस जंग में, एक अजीम जंग में मुसलमानों की फतह हुई और इस तरीके से पर्शियन एम्पायर भी खत्म हो गई। कादसिया का जो मैदान था अभी इराक की जगह है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।